Hello everyone, welcome to my YouTube channel Coding Word. Myself Vijayant Pratap Singh. Today I am going to start multiple choice question with answer and explanation on Python language. Till now I am not posted any Python lecture. Very soon in description box I will post the link of all the Python lectures. So please whenever you watch this video then please check the description box. This Python MCQ is very important for the BTech students, MCA students, BCA students as well as the computer professional. This is the very first lecture. So today I am going to discuss MCQ on introduction of Python language. Before start the session, I have a request. Please subscribe my channel, share with your friends, and if you have any suggestion or any query, then please post it in the comment box. So let's start today's lecture. First question is, who developed the Python language? Option A, Jim Dan. Option B, Guido van Rossum. Option C, Nane Storm. Option D, Vic van Rossum. तो चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर इज ऑप्शन बी, गाइडो वैन रोशम. तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Python language was developed by Guido van Rossum in Netherlands. Next question is, why Python is named Python? Option A, on the name of snack. Option B, on the name of comedy series Monty Python's Flying Circus. Option C, on Guido van Rossum's pet name. Option D, none of these. तो चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर इज ऑप्शन बी, on the name of comedy series Monty Python's Flying Circus. तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जब गाइडो वैन रॉसम पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे उस समय वो बीबीसी कॉमेडी सीरीज द्वारा पब्लिश्ड एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. वैन रॉसम को अपने लैंग्वेज के लिए एक शॉर्ट, यूनिक और मिस्टीरियस नेम की जरूरत थी. सो उन्होंने मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से ही अपने लैंग्वेज का नाम लिखा. क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा था इसलिए उन्होंने उसका शॉर्ट फॉर्म पाइथन यूज किया. Third question is, in which year was the Python language developed? And option are option A 1995, option B 1972, option C 1981, option D 1991. तो चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर इज ऑप्शन डी 1991. तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. गाइडो वैन रॉसम ने पाइथन लैंग्वेज को लेट 1980 में डेवलप करना स्टार्ट किया था और उन्होंने इसका फर्स्ट वर्जन 1991 में रिलीज किया था. उसके बाद पाइथन 2.0 2000 में आया और उसके बाद पाइथन 3.0 2008 में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी PHP, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर इज ऑप्शन सी लैंग्वेज. तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Python language is written in C programming language and it is also called C Python. Next question is, which one of the following is the correct extension of the Python file? Option A .py, option B .python, option C .p, option D none of these. तो चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर इज ऑप्शन A .py. तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. If we want to save any Python file then we use .py extension. So option A is correct. Next question is, what do we use to define a block of code in Python language? और ऑप्शन है हमारे ऑप्शन A की, ऑप्शन B ब्रैकेट्स, ऑप्शन C इंडेंटेशन, ऑप्शन D नन ऑफ दीज. तो चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर इज ऑप्शन C इंडेंटेशन. तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. In Python, we use indentation to define block of code. Indentation are simply space or tabs used as an indicator that is पार्ट ऑफ द इंडेंट कोड चाइल्ड. जैसे कि C++, जावा में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, यहां पे हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं और वहां पे सिंपली हम स्पेस और टैब का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट? ऑप्शन ए सिंगल स्लैश, ऑप्शन बी डबल स्लैश, ऑप्शन सी हैश, ऑप्शन डी डॉलर सिंबल. तो चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर इज ऑप्शन सी
हैश। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी यूज हैश कैरेक्टर टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। जैसे हम सी लैंग्वेज में डबल स्लैश यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम हैश का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन। ऑप्शन ए, क्लासेस आर रियल वर्ड एंटिटीज while object are not real. Option B, object are real word entities while classes are not. Option C, both objects and classes are real word entities. Option D, none of above. तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, objects are real word entity while classes are not real. तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाइथन में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स हमारे रियल वर्ड एंटिटीज होते हैं, व्हाइल क्लासेस आर नॉट रियल। सो आंसर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी, फंक्शन। ऑप्शन सी, एट्रीब्यूट। ऑप्शन डी, आर्गुमेंट। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, फंक्शन। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द मेथड। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विथ एन अंडरस्कोर। ऑप्शन ए, टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल। ऑप्शन बी, इट कंफ्यूज द इंटरप्रेटर। ऑप्शन सी, इट इंडिकेट अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। Answer is option C, it indicate a private variable of a class. In Python language, there is no concept of private variable. Underscore denotes that this cannot be accessed from outside the class. So option C correct है, it indicates a private variable of a class. So आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन एक डेमो सेशन था। नेक्स्ट सेशन से हम लोग टॉपिक वाइज पाइथन पे एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप। प्लीज ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।